channel We the Doctors, and starting from today we are starting off with 5 preclinical subjects, and I'm going to be teaching you physiology. I hope it is fun for you and you learn something in a very interactive fun way, and it is interesting for you as well. Also, if you have any doubts, any suggestions, any feedback, please get in touch with us on our Instagram page We the Doctors or our Telegram channel We the Doctors, links of which you can find below in the description box, or you can leave in your doubts in the comment section below. So, my name is Nishi and I'm in the second course of Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, and I'll be teaching you physiology, and it is your first lecture with us today. I hope you enjoy, and let's get started with it. Okay guys, so let's get started with our today's topic, that will be cell membrane and cell organelles. Now I want you to pay more attention on cell membrane than organelles, because organelles we have been learning since quite some time, and इस video में I'll only be giving you the brief points about brief and important points about organelles, right? I will give you a table for quick revisions for the organelles, उनके functions क्या क्या है, but apart from that organelles में ज़्यादा कुछ discuss करने के लिए है नहीं, but हम cell membrane पे ज़्यादा focus करेंगे, right? So let's get started. And cell membrane, right? So हम cell membrane का दूसरा नाम क्या है, उसको हम also we call it as plasma membrane. अब जो हमारा सेल है, राइट, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके पार्ट्स क्या है? बेसिक 3 पार्ट्स है, मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. वी हैव 3 बेसिक पार्ट: सेल मेम्ब्रेन दैट लिमिट्स, न्यूक्लियस दैट इज स्टोर्स द हेरिडिटी मटेरियल, एंड साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड सेल में सराउंडिंग है, ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. Cell membrane is made up of 3 things, okay? It is made up of 3 important things. One is lipids, second is proteins, third is carbohydrates, okay? Now just remember this: proteins is in maximum quantity, that is 50% of the cell membrane is proteinous, 47 is lipid filled, and 3% is carbohydrates. So carbohydrate is not that important, but lipids and proteins are majorly important, and आगे lecture में हम जब discuss करेंगे we'll also talk about protein to lipid ratio, right? Now let's start talking about lipids. जो मेन लिपिड कंपोनेंट होता है सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, वो होता है फॉस्फोलिपिड्स, बट एडिशनली सेल में ऑल्सो प्रेजेंट होता है कोलेस्टेरॉल, एंड एक और लिपिड होता है जो है स्फिंगोमाइलिन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टू ऐड एसिमेट्री टू द सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है. ऑल्सो नोट दैट जो प्रोटीन्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ द लीस्ट इन नंबर. उसके बारे में बात हम थोड़ा बाद में करेंगे ना. फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, हम इतना बात करें, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट इज़ यूज टू सेपरेट एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्वस एनवायरनमेंट फ्रॉम इंट्रा सेल्यूलर एक्वस एनवायरनमेंट. अब जब मैं एक्वस एनवायरनमेंट्स की बात करूँ, ये होता क्या है? हम जो बोलते हैं ECF दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो हम बोलते हैं ICF दैट इज़ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके, वो है एक्वस एनवायरनमेंट. मतलब ये हमारा सेल है, राइट, दिस इज़ आवर सेल. इसके बाहर भी वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, बट ये 2 वाटर्स को सेपरेट कौन कर रहा है, डिलिमिट कौन कर रहा है? वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. सो हमारे सेल मेम्ब्रेन का काम है दोनों को डिलिमिट करना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस. इसका सिग्निफिकेंस आगे चल के आएगा. नाउ आई विल शो यू द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल, ठीक है. नाउ दिस इज सपोज आवर सेल मेम्ब्रेन, ओके, और rather before going ahead into that I will show you that this is a highly magnified view of a cell membrane which is double mount structure, ठीक है. सो ये हो गया हमारा लैमिना 1, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, और ये हो गया लैमिना 2 जो फेस करेगा सेल को, ठीक है. ये ऐसा रहेगा, ठीक है. नाउ अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये मॉलिक्यूल्स जो है बड़े बड़े वो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ओके, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. और यहाँ जो ये वेवी चेन्स है, ठीक है, ये जो वेवी चेन्स बने हैं यहाँ, वो है फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, ओके. सो मतलब फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड, ओके, दैट इज़ द वे द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. लेट्स टेक वन इंडिविजुअल एलिमेंट एंड सी हाउ इज इट, ओके. ये रहा फॉस्फोलिपिड, ये रहे 2 चेन्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है. सो ये है फैटी एसिड और ये है फॉस्फोलिपिड. लेट्स टॉक अबाउट देम इन अ लिटिल डिटेल, ठीक है. जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, हमारा फॉस्फोलिपिड इज़ हाइड्रोफिलिक,
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? वर्ड को ब्रेक कर दो. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स अफिनिटी, राइट? सो इसका मतलब है कि हमारा जो फॉस्फोलिपिड है इट हैज़ अफिनिटी फॉर वाटर, ठीक है. बट यहीं पे हमारा जो फैटी एसिड है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक. अगेन हम वर्ड को ब्रेक कर देंगे. सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स एक डर, एक काइंड ऑफ डर, मतलब उसको पानी पसंद नहीं है, उसको कोई एफिडिटी नहीं है पानी के लिए, ठीक है. सो नाउ बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक, फॉस्फोलिपिड बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक इट इज़ ऑल्सो पोलर. पोलर मतलब क्यों पोलर? बिकॉज इट हैज़ चार्जेस, ठीक है. फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोलिपिड, मतलब क्या? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, लिपिड ग्रुप रहेगा. तो फॉस्फेट हैज़ नेगेटिव चार्जेस, लिपिड ऑल्सो हैज़ सम सर्टेन चार्जेस. इसकी वजह से फॉस्फोलिपिड इज अ चार्ज मॉलिक्यूल विच इज़ वाई इट इज़ पोलर, ठीक है. सो इट इज़ पोलर एंड चार्ज्ड. But fatty acids do not carry any charges, so they are unpolar and they are non-polar and they are non-charged. Okay, I hope this is clear. Remember, phospholipids are hydrophilic, polar and charged, whereas जो fatty acid है वो है hydrophobic, they are non-polar and they are uncharged particles. Okay, I hope that makes it clear. So now when you're talking about fatty acids, fatty acid के जो chains है उनको ऐसा समझो they are oil. Okay, यहाँ पर दो बाउंड मेम्ब्रेन्स है, ठीक है. द फॉस्फोलिपिड एक्ट्स एज अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड बीच में जो है वो फ्लूइड है दैट इज ऑयली. ओके, दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेल मेम्ब्रेन. सो द कोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? फैटी एसिड चेन्स, ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, जैसे बोला फैटी एसिड, ठीक है. ये हमारा फैटी एसिड, ठीक है, वो फैटी एसिड से बनता है. सो देयरफॉर ये जो सेल मेम्ब्रेन है इधर से सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन पास. सो इधर दे आर लिपिड सॉल्युबल या जो छोटे कंपाउंड्स है मतलब स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है वो ही पास कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड सॉल्युबल है क्योंकि वो फैटी एसिड चेन्स है तो वो ईजिली पास कर जाएंगे फैटी एसिड के विस्कस लेयर के बीच से, राइट. सो दैट ईजिली पासिबल एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेज है वो ईजिली पास कर जाएंगे. सो ओनली टू थिंग्स कैन पास थ्रू दीज सेल मेम्ब्रेन. बट अब सपोज मुझे पास कराना है एक बड़ा मॉलिक्यूल, मुझे पास कराना है जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो वो कैसे होगा? नाउ सी हियर, यू शुड नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट. वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है एंड वो कुछ ही चीज़ें मैंने स्टेट कर दी है. एक तो है लिपिड सॉल्युबल चीज़ है और एक है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस. तो बाकी के सो इन शॉर्ट आई कैन से दिस कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स तो पास कर नहीं सकते, छोटे मॉलिक्यूल्स तो ईजिली पास कर जाएंगे, लार्ज कर नहीं सकते. ये कैसे पास होंगे? या जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस नहीं है वो कैसे पास होंगे? जब हम प्रोटीन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे मेम्ब्रेन्स का तब हमें समझ में आएगा कि ये कंपोनेंट्स कैसे पास होंगे, ठीक है. दिस विल गिव अस द कॉन्सेप्ट टू स्पेशलाइज्ड गेटवेज, ठीक है. हम गेटवेज के बारे में जब पढ़ेंगे देयर आर गेट्स, देयर आर चैनल्स, देयर आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब हम उस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स of the plasma membrane. Number 1 we have asymmetry. asymmetry मतलब जैसे मैंने बताया दो लेयर्स है, राइट. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो ये हो गया लेयर 1 या लैमिना 1 या लीफलेट 1, ठीक है. इधर ऑल द सेम और ये हो गया लेयर 2. अब ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं हमें वो समझना है, ठीक है. अब हमने बोल दिया इसको आउटर लीफलेट या लेयर 1, ठीक है. ये डिफरेंट क्यों है अब हमें समझना है कि यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स है वो डिफरेंट है दैन जो प्रेजेंट है इनर लीफलेट में. ओके, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन टू अंडरस्टैंड यू, मेक यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, ठीक है. ये लेयर 1 और लीफलेट 1. अब हमारा जो लेयर 1 है वो फेस करेगा ECF को, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली फेस करेगा. और जो लेयर 2 है वो ICF को फेस करेगा. आई होप दैट इज़ क्लियर. वो अंदर का कॉम्पोनेंट है सेल का, जबकि लेयर 1 जो है वो आउटर कॉम्पोनेंट है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. सो लेयर 1 में फॉस्फोलिपिड्स जो प्रेजेंट है दैट इज़ फॉस्फेटिडाइलसीरीन and sphingomyelin. I had mentioned it earlier. Sphingomyelin is a very important component apart from phospholipids. So phosphatidylcholine which is a phospholipid and sphingomyelin, ठीक है. ये दो चीज़ें प्रेजेंट है हमारे लेयर 1 में. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन लेयर नंबर 1. वो किस वे में प्रेजेंट है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड देर आर मैनी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट. जबकि जो लेयर 2 है वहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है. That is what you need to understand. Now
जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड है, जो मैंने डिफरेंट प्रोटीन्स के नाम लिए, वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है, और डिफरेंट होंगे दैन जो प्रेजेंट है यहाँ पर लेयर 2 में, ठीक है. लेट्स क्विकली रिकैप. ओके, बिफोर दैट इनर लीफलेट में कौन से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं? इनर लीफलेट में होता है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन एंड फॉस्फेटिडाइल सीरीन. आउटर लीफलेट में क्या होता है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्विंगोमाइलिन. इनर लीफलेट में क्या होता है? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन एंड फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है. आउटर लेयर में देर आर मोर कार्बोहाइड्रेट्स, इनर लेयर में देर आर लेस कार्बोहाइड्रेट्स. एंड आउटर लेयर में प्रोटीन ज़्यादा होंगे, अलग होंगे, इनर लेयर में प्रोटीन्स कम होंगे और वो भी डिफरेंट होंगे, ठीक है. दैट वील स्टडी अबाउट इट लेटर. They'll be different from the outer layer components. Okay, this is how the asymmetry is established between the outer layer and the inner layer. I hope that is clear to you. So there are 3 points you need to remember. One is about the phospholipid, ठीक है, जो phospholipid है. सेकेंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और थर्ड प्रोटीन्स के बारे में. बेसिकली तीनों कंपोनेंट्स डिफरेंट है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. नाउ वील टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइडिटी. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइडिटी? मतलब अगर हिंदी में लेम लैंग्वेज में समझाओ, सो इट इज़ वेरी ऑयली, स्लिपरी, बहता हुआ काइंड ऑफ, बेसिकली बहुत ही ईजी फ्लोइंग. ओके, दैट इज़ फ्लूइडिटी. व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लूइडिटी, आई ऑल्सो नीड टू ऐड हियर दैट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो मोबाइल है. अब मोबाइल का मतलब क्या होता है? सपोज दीज आर द 2 लेयर्स ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. अब यहाँ पर जो मेरा एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है. बेसिकली वो पूरे लेंथ में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, राइट. सिमिलरली इन द लोअर वन, यहाँ पर है, वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, विच इसका मतलब है कि इट इज़ मोबाइल, इट कैन मूव, राइट. तो वो होता है मोबाइल. सो फॉस्फोलिपिड्स आर मूवेबल एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स देम फ्लूइडिटी. सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि जो फैटी एसिड चेन्स है, यू कंसिडर देम एज ऑयल. सो नाउ ऑयल इज फ्लोइंग, राइट. सो विच इज़ व्हाई इट गिव्स द फ्लूइडिटी. सो जो पार्टिकल्स है वो सेल मेम्ब्रेन में कहीं पे भी फ्लो हो सकते हैं, राइट. Now this gives rise to 3 important factors. Okay, let's talk about those factors here. We have exocytosis, endocytosis and cell biogenesis. अब ये 3 होते क्या है? We know what is exo and endocytosis, but for brief I'll tell you. Now suppose we have an axonal ending over here. Axon है, उसमें ending है. यहाँ पर एक वेसिकल है जिसमें है एसिटिलकोलिन, ठीक है, ACH है. ये वेसिकल जाके फ्यूज़ हो जाएगा विथ आवर ये जो हमारा वेसिकल है वो जाके फ्यूज़ हो जाएगा एक्सोनल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और फिर ये एसिटिलकोलिन रिलीज़ हो जाएगा बाहर. सो विच इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल के कंटेंट्स बाहर आना, राइट. नाउ सपोज वी हैव अ WBC हियर and we have a molecule over here, say a foreign particle over here, and our WBC has to go and engulf that because body will not like foreign particles. So WBC ने इस चीज़ को engulf कर लिया, फेगोसाइटोस कर लिया. सो इसीलिए हम इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब बाहर के जो कंटेंट्स है वो सेल के अंदर आ गए. सो उसको एंडो बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस. ना सेल बायोजेनेसिस क्या होता है? लेट्स गेट बैक टू दिस ACH एग्जाम्पल. ये मेरा नॉर्मल मॉलिक्यूल है, एक्सोनल एंडिंग है, और यहाँ पर है ACH वाला वेसिकल, ठीक है. उसका काम हो गया, मतलब ये हो गया रिलीज, ACH के कंटेंट्स हो गए रिलीज. ओके, बट अब आप ये समझो कि यहाँ पे क्या एक गैप रह जाएगा आफ्टर कंटेंट्स बाहर आ गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता? इज़ बिकॉज ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, राइट, जैसा मैंने बोला, दे विल ट्रैवल, दे आर मोबाइल. सो वो आके उस होल को, गैप को कवर कर देंगे. सो विच इज़ वाई अगेन द एक्सोनल मेम्ब्रेन विल बी रीजेनरेटेड. Okay, that is called biogenesis, regeneration, biogenesis. Okay, and when the cell divides, it goes into mitosis. उस टाइम पे भी जो सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होता है, इट इज़ कॉल्ड सेल बायोजेनेसिस, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू. नाउ विल टॉक अबाउट सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लूइडिटी. ओके, जो फैक्टर्स है वो क्यों और कैसे अफेक्ट करते हैं. नाउ सपोज मैंने एक सेल लिया और उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया. जब मैंने बोला कि फैटी एसिड एक्ट्स एज ऑयल, राइट, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो ऑयल और मेल्ट होने लगेगा एंड वो और मोबाइल हो जाएगा और फ्लोइंग हो जाएगा. सो ईजिली सब चीज़ें पास हो पाएंगी. सो देयरफॉर टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्लूइडिटी. आप समझ गए कैसे? बहुत फ्लूइड हो जाएगा, बहुत वेवी हो जाएगा, आराम से चीज़ें जो भी है पास कर पाएंगे मेम्ब्रेन में. सो दैट इज़ वाई इट विल इंक्रीज द फ्लूइडिटी, ठीक है. इट विल मेल्ट मोर ईजिली इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट. ठीक है, आई विल शो यू बाय अ डायग्राम. ये हमारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, और ये है फैटी एसिड चेन्स. ठीक है, उसके अंदर ना विदाउट एनी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ये तो फ्रीली मूविंग है, आराम से यहाँ वहाँ हिल सकते हैं, तो वो ईजिली पास कर जाएंगे सब्सटेंस. बट सपोज मैंने यहाँ डाल दिया एक कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल. ठीक है, वेरी इविल कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल बीच में आ गया तो जो फैटी एसिड चेन्स है वो ईजिली नहीं हिल पाएंगे, वो मोबाइल नहीं रहेंगे. देयरफॉर जो सब्सटेंसेस पास करना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाएगी. सो देयरफॉर इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट विल डिक्रीज द फ्लूइडिटी. आप समझ गए? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बीच में आ गया तो फैटी एसिड चेन्स मूव नहीं कर पाएंगे, विच इज़ वाई फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी. ना जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर नाउ. ये जो किंग्स है दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेशन. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फैटी एसिड्स वो होते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं. ये जब रहते हैं तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, बिकॉज बॉन्ड्स लूज रहते हैं, बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेशन द बॉन्डिंग इज लूज, देयरफॉर फ्लूइडिटी विल इंक्रीज. ठीक है, more oily again, more slippery, right? That is what you need to remember. Now once we have finished this, let's talk about the carbohydrate contents of the cell. It is only 3%. Now I will tell you how is it present. These carbohydrate contents are present in the form of lipid rafts. जो 3% कार्बोहाइड्रेट रहता है वो होते हैं लिपिड राफ्ट्स के थ्रू. अब ये लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. एंड ध्यान रखना है लिपिड राफ्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, सो बी केयरफुल ऑफ दीज. आई विल टेल यू कौन सा क्वेश्चन भी आता है, जस्ट मेक नोट ऑफ दैट. ओके, बेसिक सी चीज़ है बट उसको भूलना नहीं है. ठीक है, लिपिड राफ्ट्स बनते हैं कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड से. नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड्स? अगेन लेट्स ब्रेक द वर्ड. ओके, लेट्स ब्रेक द वर्ड. ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स, यहीं पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे. लिपिड्स तो आपको पता ही है. ठीक है, यहाँ पर ही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लिपिड राफ्ट्स? ओके, नाउ सपोज हमारा सेल डिस्ट्रेस में है. ओके, वी हैव दिस सेल, यहाँ पर बायोकेमिकल फंक्शंस चालू है, बट सेल ओवरलोड में है, उसको और फंक्शंस करने हैं. कैसे करेगा वो? ठीक है, बायोकेमिकल फंक्शंस एज इन TCA चालू है, ग्लाइकोलिसिस चालू है, ग्लूकोनियोजेनेसिस चालू है, ग्लाइकोजेनोलिसिस चालू है. बहुत सारे टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, बट इट इज़ इन सेल ओवरलोड कंडीशन. मतलब काम तो चल रहा है बट उसको और काम करवाना है, राइट? तो वो कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन कंपार्टमेंट्स. ठीक है, इट विल इंट्रोड्यूस सर्टेन कंपार्टमेंट्स. दीज आर कॉल्ड लिपिड राफ्ट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, ये कंपार्टमेंट्स हैं. अब जो बायोकेमिकल फंक्शन सेल के अंदर हो रहे थे वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट गिव्स एन एडिशनल कंपार्टमेंट इन द सेल टू कंटिन्यू विद द बायोकेमिकल फंक्शंस. तो ये लिपिड राफ्ट्स होते हैं टू टाइप्स के. एक तो होते हैं प्लेनार और एक होते हैं कैवियोलार. ठीक है, जो हमारे प्लेनार है वो कुछ ऐसे होते हैं. Again, these are not double membrane bound structures, but just to make you understand, this is the lipid raft here. Okay, not prominent, not visible. This is the kind of compartment that is formed inside the cell. जो cavicular type होते हैं वो होते हैं specialized and they are flask shaped. Okay, so suppose ये है, ये हमारे compartments बन गए. ठीक है, very specialized and थोड़े से flask shaped है. Okay, so ये है हमारे कैवियोलर लिपिड राफ्ट्स. ओके, एंड क्वेश्चन यहाँ आया था किस प्रोटीन से ये कैवियोलर राफ्ट्स बनते हैं. सिंपल, नेम पे बेस्ड है, कैवियोलिन प्रोटीन्स. हाफ द थिंग्स यहाँ पे यही समझना होता है कि नेम पे ही बेस्ड रहते हैं, हमें बस उसको आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है. सो कैवियोलिन प्रोटीन्स मेकअप लिपिड राफ्ट्स. ओके, कैवियोलर लिपिड राफ्ट्स, यहीं पे क्वेश्चन आया था. प्लीज़ याद रखना, ध्यान रखना, बेसिक चीज़ है, भूलना नहीं है. ठीक है, now let's talk about the cholesterol content as a part of lipid, right? जो लिपिड्स था यहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस दो तीन चीज़ें हैं जो बतानी है, वो ध्यान दे दो ना. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, एज मैंने पहले भी दिखाया था पहले वाले डायग्राम में. यहाँ देखो, ये है हमारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो इनके चार्ज एंड्स जो है वो बाहर की तरफ फेस करेंगे, मतलब ECF की तरफ एंड ICF की तरफ, राइट? सो दे आर फेसिंग द ECF एंड ICF, राइट? सो यहाँ है ECF और यहाँ है ICF. सो बेसिकली दे आर एक्सपोज्ड.
जब मैं बोल रही हूँ कि वो फेस कर रहे हैं, सो दे आर एक्सपोज्ड. ओके, नाउ एडिशनली यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कोलेस्टेरॉल डिक्रीजेस फ्लूइडिटी बिकॉज उसने स्पेस ईट अप कर लिया, राइट. जो फैटी एसिड्स के मूवमेंट का स्पेस था वो उसने ईट अप कर लिया, तो अब फैटी एसिड चेन्स मूव कर नहीं सकते. सो बेसिकली इस वजह से फ्लूइडिटी जो है सेल की वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट. Once we are done, now this is one major part of cell membrane we have finished. Now we'll talk about another major part, that is associated proteins, right. Now proteins are 50%, right. As I've told before also, proteins are 50% and they are of two types, integral and peripheral. अब किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, लेट्स लुक एट दैट. आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू यू. नाउ यू विल टेल मी द डिफरेंस योर सेल्फ बाई लुकिंग. आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है, राइट. इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही टाइटली बाउंड है, क्लोजली बाउंड है, बिकॉज वो पूरे मेम्ब्रेन के थ्रू एंड थ्रू जा रहे हैं, राइट. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो है, सी, ये जो है मेरा जो स्टाइलस है, दैट विल एक्ट एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, दे आर द सेम थिंग, राइट. बिकॉज इट इज़ गोइंग थ्रू एंड थ्रू, मतलब वो लेयर 1 को भी क्रॉस कर रहा है, लेयर 2 को भी क्रॉस कर रहा है, राइट. नाउ इसके दो कॉम्पोनेंट्स है, वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगेन जो ICF को फेस कर रहा है, जो लेयर 1 के ऊपर है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन. एंड लेयर 2 को जो फेस कर रहा है, लेयर 2 के जो नीचे है और जो ICF को फेस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर डोमेन, राइट. सो लेट्स राइट इट हियर, इंट्रासेल्यूलर डोमेन, बिकॉज वो ICF को फेस कर रहा है. और ये है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, राइट. ये था हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन जो ECF को फेस कर रहा है. पेरिफेरल प्रोटीन्स कैसे हैं, दे आर नॉट गोइंग थ्रू एंड थ्रू. मतलब सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, या तो फिर लेयर 2 के यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, राइट. सो दे आर ओनली अटैच टू द आउटर सर्फेस और टू द इनर सर्फेस, दे आर नॉट गोइंग थ्रू एंड थ्रू, राइट. दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन्स. अब इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस है, वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Believe me, very very important. They are connected to pharmacology as well, and pharmacology is also available on our channel, so get set for that as well. We'll be starting off very soon with pharma. Before that, let's come back to the integral proteins. Now जो मैं आपको बोल रही थी कि जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस है, जो नहीं लिपिड सॉल्यूबल है, वो कैसे पास करेंगे हम वो देखेंगे अब, ठीक है. सो इंटीग्रल प्रोटीन्स, अगेन लेट्स रिवाइज. पास थ्रू एंड थ्रू, राइट. मतलब वो पूरे दोनों लेयर को ट्रेवर्स करके जाएंगे. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेनस बिकॉज वो ट्रेवर्स कर रहे हैं दोनों लेयर्स को, ठीक है. एंड एज मैंने बोला था, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन रहेगा, दिस विल बी द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, दिस विल बी द इंट्रासेल्यूलर डोमेन, राइट. दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर यहाँ, ठीक है. I hope that makes sense to you. Now there are 4 functions or rather 5 functions we'll be talking about how these integral proteins are present in the cell membrane. Okay, कैसे ये present है, किस 5 तरीक़ों से present है, right. So let's quickly name them. This is 1, this is 2, 3, 4 and 5th is here. Okay, here is 5th, right. So now let's name them. First one is channels. फर्स्ट वन इज़ चैनल्स. सो ये जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, दैट इज़ चैनल्स, राइट. चैनल्स कैसे बनते हैं, आई विल क्विकली शो यू. चैनल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक टुगेदर, ठीक है. पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ऑब्वियसली प्रोटीन्स है तो पॉलीपेप्टाइड्स तो रहेंगे ही. ओके, लिंक्ड टुगेदर. सी सपोज ये है मेरे प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है. यहाँ से नाउ कैन यू सी दैट देयर इज़ अ टनल फॉर्म्ड वेयर, यहाँ पर बीच में, राइट, देयर इज़ अ टनल फॉर्म्ड. दिस टनल इज़ फॉर द पैसेज ऑफ वाटर और एनी अदर सब्सटेंस, राइट. पानी को ईजिली पास करा देगा वो थ्रू दीज प्रोटीन्स, राइट. सो इट फॉर्म्स अ चैनल, इट फॉर्म्स अ टनल इन बिटवीन दैट इज़ यूज फॉर पासिंग ऑफ सब्सटेंसेज, राइट. सो वाटर, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का. So these are called channels. These are polypeptide chains linked together. Okay. Then we'll talk about carriers. ठीक है. यहाँ पर एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैं दे सकती हूँ, आई टू मेक यू अंडरस्टैंड कैरियर प्रोटीन्स का काम क्या है.
Okay, now say these are the carrier proteins. Number 2 are the carrier proteins. How will I explain this to you? Look at this. Think of this as a bird. Okay, we have a bird here with its beak open. Okay, this is a bird with its beak open. Now when there is a drug or a molecule or a hormone that comes, okay, suppose this is a molecule or a say a hormone molecule or a drug molecule that comes, it will be caught by the beaks of the bird. So ये molecule है, beak ने पकड़ लिया इसको, right? फिर modify हो जाएगा, जो ये bird है वो modify हो जाएगा. कैसे? वो इस तरह से या किसी भी तरह से modify हो जाएगा such that कि suppose this is the cell membrane, ठीक है, and here is my bird now, ठीक है. It modified in some way so that the beak is facing inside the cell now. So मॉलिक्यूल पकड़ा बर्ड ने और उसको अंदर की तरफ घुमा दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया खुद को, प्रोटीन ने खुद को मॉडिफाई कर दिया और घुमा दिया इन सच अ वे अब वो रिलीज़ कर देगा मॉलिक्यूल सेल के अंदर, राइट. सो मेरा जो कंटेंट है से जो मॉलिक्यूल था, ड्रग था, हार्मोन था, वो रिलीज़ हो गया सेल के अंदर एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट. जो भी इफेक्ट उसको लाना है वो ला देगा सेल के अंदर, मतलब इट विल बी रिलीज्ड इन द ICF. दैट इज़ हाउ द कैरियर प्रोटीन वर्क्स. उसका काम है सब्सटेंसेस को कैच करके सेल के अंदर ड्रॉप इन कर देना, ठीक है. अंडरस्टैंड दिस वर्ड एग्जाम्पल, यू विल रिमेंबर इट वेरी इजीली. एंड द थर्ड वन इज लिंकर प्रोटीन्स. ना लिंकर प्रोटीन्स का काम है स्टेबिलिटी देना, ठीक है. लिंकर प्रोटीन्स आर फॉर स्टेबिलिटी. थिंक ऑफ इट एज अ मंकी, ओके, इट इज़ अ मंकी. It is a monkey. What does it do? How does it provide stability, right? Say this is the cell membrane and the monkey is transmembranous, okay. So उसका 2 हाथ बाहर है, it has 2 hands outside and 2 legs inside facing the ICF. क्या करेगा ये? Now बाहर जो है मेरे पास है collagen. Say we have collagen outside. Now collagen is a stabilizing agent, okay. That is a stabilizing agent. And अंदर की तरफ है we have actin filaments और myofilaments और tubulin proteins that provide the cell stability. So यहाँ पर है मेरे पास tubulin से और we have actin whatever, ठीक है. So इसके हाथ ने कोलाजन को कैच कर लिया और इसके पैर ने एक्टिन को कैच कर लिया, ठीक है. इट विल अटैच इटसेल्फ टू कोलाजन ऑन द आउटसाइड एंड ट्यूबुलिन ऑन द इनसाइड. इस तरह से वो सेल को अधेशन में हेल्प कर देगा, उसको अटैच होने में हेल्प कर देगा, राइट. एक तो ये फंक्शन हो गया, दूसरा वो सेल को स्टेबिलिटी दे देगा, ओके. इट विल गिव द सेल इट्स स्टेबिलिटी. सो दैट वे लिंकर प्रोटीन विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी. अब आगे मैं आपको बताऊंगी दैट देयर आर अदर प्रोटीन्स एसोसिएटेड टू दिस लिंकर प्रोटीन जिसके फंक्शंस और है, मैं आगे बता दूंगी. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द लिंकर प्रोटीन. इसका काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना. रिमेंबर दिस इज एन एग्जांपल विथ मंकी, राइट. वो मंकी है, उसके 2 हाथ है, उसके बाहर कुछ और पकड़ लिया, अंदर कुछ और पकड़ लिया एंड उससे सब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया सेल को, ठीक है. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स इज रिसेप्टर्स, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. रिसेप्टर्स के बारे में वील बी हैविंग अ सेपरेट लेक्चर. इट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन फार्माकोलॉजी एज एन ओवरव्यू लेटर by Rishabh Bhaiya. So get ready for that as well. But now we'll just talk about in brief about receptors, ठीक है. 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू बाय द डायग्राम. सो ये है हमारा रिसेप्टर 1, ठीक है, एंड ये हो गया सेल 2 विथ रिसेप्टर 2. यहाँ रिसेप्टर आएगा इंट्रासेल्युलरली, मतलब रिसेप्टर होगा न्यूक्लियस पे, ठीक है. ये इंट्रासेल्युलर हो गया. ना सपोज आई हैव अ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन है हमारे पास. वो ऑब्वियसली लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, सो दे कैन नॉट पास इजीली, राइट. पास नहीं हो सकते तो अपने इफेक्ट्स कैसे लाएंगे? ईजी, वेरी ईजी, रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे. सो यहाँ है रिसेप्टर, फिर अगेन रिसेप्टर मॉडिफाई हो जाएगा एंड जो इफेक्ट्स है वो सेल के अंदर आ जाएंगे. नाउ व्हाट आर पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स, राइट. ये हो गया एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, बेसिकली कैटेकोलामाइंस हो गए. देयर आर अदर प्रोटीन बेस्ड और पॉलीपेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स दैट वी लर्न अबाउट लेटर इन एंडोक्राइनोलॉजी. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, जो पॉलीपेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं दे आर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, सो दे कैन नॉट पास द मेम्ब्रेन वेरी इजीली. तो क्या करेंगे, वो रिसेप्टर से बाइंड कर लेंगे और अपने इफेक्ट्स सेल के अंदर प्रोड्यूस कर लेंगे, ईजी, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, ठीक है. एक क्लास हो गया पेप्टाइड हार्मोन्स, बट दूसरा क्लास होता है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स, राइट.
जैसे हो गया थायरोक्सिन, राइट, T3 T4 हो गया, एंड हो गया ईस्ट्रोजन. सो दीज आर ऑल लिपिड सॉल्यूबल्स, राइट. आप ये तो इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर देंगे, तो इनके इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? वेरी सिंपल, वो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर को अटैच कर देंगे, एंड फिर जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स है वो प्रोड्यूस कर देंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स सच एज CAMP, राइट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. नाउ दिस इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, एंड ये मैसेंजर काम करेगा सेल पे टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट्स. ओके, दैट विल गिव द डिजायर्ड इफेक्ट्स ऑन द सेल. जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर ने डायरेक्टली अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, वैसे ही इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स पहले बनाएंगे डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स, और फिर वो सेकेंडरी मैसेंजर्स विल बी यूज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट्स इन द सेल. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड अ मेजर पार्ट. पेरिफेरल प्रोटीन्स रह गए, अब हम वो पढ़ लेंगे एंड ऑर्गेनल्स पढ़ लेंगे, राइट. लेट्स टॉक अबाउट पेरिफेरल प्रोटीन्स. लूजली अटैच, जैसे मैंने बताया था, वो टाइटली अटैच है बिकॉज ट्रांसमेम्ब्रेनस है. दे आर वेरी टाइटली अटैच, बट ये लूजली अटैच है, नॉन कोवेलेंटली बाउंड है, इसके लिए लूज है, राइट. एंड या तो बाहर की साइड पे होंगे या तो अंदर की साइड पे. सो एक्सटर्नली प्लेस्ड या इंटरनली प्लेस्ड. अब इनके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सेल को स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है, दे स्टेबलाइज द सेल. कैसे करेंगे? जस्ट लाइक लिंकर प्रोटीन्स, ये भी सेल को स्टेबलाइज कर देंगे. ठीक है. नाउ अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो, सी पहले मैं ये बता देती हूँ. सी सपोज दिस इज द लिंकर प्रोटीन, ये जो येलो में है वो हमारा है लिंकर प्रोटीन, एज आई टोल्ड यू बिफोर. इससे अटैच्ड है ये पेरिफेरल प्रोटीन्स. ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है एंड ये सेल को स्टेबिलिटी दे देंगे. नाउ देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स, दिस इज अ 7-pass रिसेप्टर, और वी कॉल दिस अ सर्पेंटाइन रिसेप्टर बिकॉज वो थोड़ा स्नेक जैसा है, सो उसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं. ठीक है. सो दिस रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद पेरिफेरल प्रोटीन्स. ये रेड रिसेप्टर है, इसके ऊपर हमने एक मॉलिक्यूल अटैच कर दिया. इट इज़ एसोसिएटेड विद अ पेरिफेरल प्रोटीन. ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर देगा टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट. सो एसोसिएटेड विद रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम. जो मैं यहाँ बोल रही थी इफेक्ट्स आएगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस कर देगा, इफेक्ट्स लाएगा. तो ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पेरिफेरल प्रोटीन्स जो अटैच है रिसेप्टर्स से. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. नाउ वील टॉक अबाउट 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने पहले भी मेंशन कर लिया है, प्रोटीन टू लिपिड रेशियो and permeability. Okay, these are 2 things that we need to talk about. So when we talk about protein to lipid ratio, they can be of 2 types, one based on mass and one based on volume. Now when I say there is 1 kg of cotton and 1 kg of iron, they both are equal, so उनका ratio 1:1 हो जाएगा because है तो 1 किलो ही, right. 1 kg ही है, कितना भी हो है तो 1 kg, वेट हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, राइट. सो वो हो जाएंगे 1:1 रेशियो में. सो देयरफॉर प्रोटीन 1 रेशियो एंड लिपिड 1 क्वांटिटी, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट प्रोटीन ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दैन लिपिड्स, राइट. इस वजह से उनका रेशियो होता है 1:1:1. सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन. जब MCQ सॉल्व करोगे तो ध्यान देना कि रेशियो जो पूछा गया है वो मास के बेसिस पे या वॉल्यूम के बेसिस पे. ठीक है. नाउ वील क्विकली गो थ्रू दिस निमोनिक दैट सेज मिजोरम, राइट. एंड ये क्या है? ठीक है, this is the decreasing order, it is a decreasing order of the protein is to lipid ratio. Now when I talk about this, see, protein upon lipids, that is the protein is to lipid ratio. Now when I say it is 1, matlab protein is equal to lipid, but when this is greater than 1, so P by L is equal to greater than 1, matlab kya hai? Protein is greater than lipid, and when protein is to lipid is लेस दैन 1, मतलब क्या है? प्रोटीन्स कम है लिपिड से, राइट. आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. नाउ व्हाट इज दिस न्यूमोनिक अबाउट, राइट. अंडरस्टैंड दिस दैट द ISORM, that is isorum, is the main component of this. Apart from that, the M and M at the ends are just to complete the mnemonic, right. Now the first M stands for maximum, right. It stands for maximum, and the last one stands for minimum, which says that it is a decreasing order, right. So first M is okay, first M is the maximum, then comes I, so that is inner mitochondrial membrane, and उसका रेशियो क्या है? 3.2. so P by L is equal to 3.2. ग्रेटर देन 1 है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा होगा एंड लिपिड्स कम होंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट इज़ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो यहाँ अटैच्ड होते हैं ऑक्सीडेसेस, राइट. ऑक्सीडेसेस फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन करना, ATP प्रोड्यूस करना, एंड दे आर बेसिकली प्रोटीन्स. ठीक है, दे आर बेसिकली प्रोटीन्स.
विच इज़ वाई प्रोटीन ज़्यादा होगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा होना ही है बिकॉज ऑक्सीडेसिस प्रेजेंट है, ठीक है. सो विच इज़ वाई इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ मोर प्रोटीन्स, दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो मोर P:L रेशियो. एंड देन वी हैव S, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. सार्कोमियर मसल सेल्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहाँ पर भी प्रोटीन ज़्यादा है दैन लिपिड्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर दैन 1, द रेशियो इज़ 2, राइट. देन O फॉर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसका रेशियो 1 है, मतलब प्रोटीन और लिपिड इक्वल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है. देन वी हैव RBC, अगेन 1 है, मतलब प्रोटीन एंड लिपिड्स आर इक्वल इन नेचर, राइट. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर इक्वल इन नेचर. लेट्स टॉक अबाउट M, okay, myelin sheath. Now this is an example. This has been asked as a question and the only exception over here, okay, where protein is to lipid ratio is less than 1, right. Protein is to lipid ratio is less than 1, मतलब प्रोटीन्स कम है, लिपिड ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? बिकॉज माइलिन शीट जो है वो CNS में प्रेजेंट है, उनका काम है इंसुलेशन, ठीक है. दे आर फॉर इंसुलेशन. देयरफॉर जब वो इंसुलेशन के लिए है तो मतलब लिपिड ज़्यादा होंगे बिकॉज दे प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट, मतलब मोर इंसुलेशन, विच इज़ वाई लिपिड्स आर मोर एंड प्रोटीन इज लेस. सो देयरफॉर द रेशियो इज लेस दैन 1, दैट इज 0.3. लेट्स क्विकली रिवाइज दिस. इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन 3.2, मतलब प्रोटीन ज़्यादा है. S इज फॉर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब प्रोटीन्स अगेन ज़्यादा है, रेशियो इज 2. outer mitochondrial membrane is 1, मतलब protein is equal to lipid. RBC is again 1, again protein is equal to lipid. And M is for myelin sheath, that is 0.23, because यहाँ पर lipid ज़्यादा है than proteins, right. Okay, so now let's talk about permeability. Permeability का मतलब क्या है? As you know that cell membrane जो है वो बहुत ही selectively permeable है. Now what do you mean by selectively permeable? सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है वो कुछ ही चीज़ों को अलाउड करता है. जैसे हो गया लिपिड सॉल्यूबल, वो उसी चीज़ों को अलाउड करेगा जो लिपिड सॉल्यूबल है, या जो छोटे हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेगा, राइट. सो लेट्स क्विकली रिव्यू दिस निमोनिक अबाउट द परमेबिलिटी, राइट. अगेन प्लीज़ नोट दैट दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब मैक्सिमम ऊपर है एंड मिनिमम नीचे है, मैक्सिमम मिनिमम, प्लीज़ नोट दिस. सो द निमोनिक सेज, hi gut, so you're saying hello gut, hello to your tummy, glucose or chlorine peena, right. Glucose, chlorine, peena. So you're telling your gut to drink glucose and chlorine, right. So let's quickly unfold this, decode this. So H stands for H2O, I stands for indole, G for glycerol, U for uric acid, T for tryptophan, a very important amino acid. Then we have glucose and chlorine as it is. P for potassium, not phosphate, P for potassium, and N for sodium itself. So what does this tell you? The cell membrane is maximally permeable to H2O, मतलब it is maximally allowing water to pass through and minimally allowing sodium to pass through, which is why we have a pump called sodium potassium ATPase pump, right, which we'll talk about later. इसका फंक्शन क्या है? 3Na अंदर लाना, 2K प्लस बाहर फेंकना, ठीक है. I will talk about this later. But Na will not pass through the cell membrane easily, so we need a pump that uses ATP, right. It uses ATP to bring the sodium inside and throw the potassium outside. We have finished a major component of our lecture today. Quickly I'll give you a review about the organelles and we can finish our lecture, right. Let's talk about the organelles divided into membrane bound and non-membranous organelles, right. Membrane bound, non-membranous. Membrane bound is endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, peroxisome, secretory vesicles, mitochondria and nucleus, whereas non-membranous is ribosomes, cytoskeleton and centrosomes. Now this diagram, this table is for quick revision. Do not take this as the basis. This has been taken from Sambulingam, and this is for quick revision purposes once you have completed your studying about the organelles. So let's talk about the organelles in details. First we go with the membrane bound. First one is ER, divided into two types, SER and RER. So what does this state? RER, it is synthesis of protein. Please remember, it is a very important thing, synthesis of proteins, right. And smooth endoplasmic is for synthesis of lipids and steroid. More than anything, and detoxification to some extent, okay. These are the important points here which I have written. Detoxification, lipid synthesis, protein synthesis is function of RER. Now RER is granulated because it has ribosomes attached to it, okay. Now
I will tell you about vesicles that are formed, right? Secretory vesicles कैसे बनते हैं ना? These are vesicles. Basically जो ER से pinch off होते हैं vesicles, pinch off from ER, they fuse to Golgi apparatus, and that for transport purposes. Okay, they attach to Golgi apparatus for transport purposes, and that forms the vesicles. Like, so suppose this is a vesicle, right? How is this formed? First, it will detach from the ER, then it will fuse to Golgi, and ultimately this vesicle will form lysosomes. Okay, I hope that is clear. Okay, and then forms lysosomes, right? Now let's talk about the second, that is Golgi apparatus. These are flattened sacs and vesicles. What does Golgi apparatus do? It is known for processing, packaging and delivering of proteins and lipids. पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशंस. नाउ व्हाट डज पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशंस मीन? ईआर से प्रोटीन बन के आ गया गोल्जी के पास. अब उसका काम है कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको इजीली पास करा दे. अब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे इजीली पास होगा? बिकॉज गोल्जी अपैरेटस जो है वो उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको पैक कर देगा इस तरह से कि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सके, एंड इट कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल वेरी इजीली. ओके, so that is why Golgi apparatus is for modification of the proteins as required. Okay, and then Golgi vesicles, as I said, जो ER vesicles है वो Golgi apparatus से fuse होकर Golgi vesicles बना देंगे, and that further will form the lysosomes. So now we are talking about lysosomes, so just complete the lysosomes topic. Now everybody knows that lysosomes is called the suicidal bags, right? Why the suicidal bag? Because we need to ingest foreign particles. जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया सेल में से, पैरासाइट आ गया या स्पोर्स आ गए पैरासाइट्स के, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो वो हमें सेल में नहीं चाहिए, सो वो इंजेस्ट कर लेगा ये लाइसोसोम. एंड सपोज देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ योर सेल. ओके, उसके कॉन्टेंट्स आर हार्मफुल फॉर यू. ओके, वो सेल नहीं चाहिए अब हमें, राइट? वी नीड टू किल दैट सेल. सो ये प्रोग्राम सेल डेथ करेगा, सो दैट वो खुद को किल कर सके, वो खुद ही सेल अपने आप को किल कर सके. वो कैसे होगा? बिकॉज ऑफ लाइसोसोम्स, एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम्स में, उसकी वजह से. एंड जो ये प्रोग्राम सेल डेथ है उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. ओके, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. नाउ जो लाइसोसोम्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स दैट आर हाइड्रोलिसिस. हाउ डू हाइड्रोलिसिस वर्क? लेट्स सी दैट. कंपाउंड है, हाइड्रोलिसिस है, मतलब बेस्ड वाटर बेस्ड है, सो दे गिव स्प्लिटेड कंपाउंड्स. सपोज दिस इज़ अ कंपाउंड, राइट? ये कंपाउंड है मेरा. अब जो ये हाइड्रो मतलब जो वाटर है, राइट, इट इज H+ एंड OH-, वो क्या कर देगा? इस कंपाउंड को इस तरह से ब्रेक कर देगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाए. सो जो फर्स्ट पार्ट है वो H+ से अटैच हो जाएगा, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो OH से अटैच हो जाएगा. सो देयरफॉर वी गेट 2 डिफरेंट कंपाउंड्स. ओके, दैट इज़ हाउ द हाइड्रोलिसिस वर्क्स. So lipids जो है in presence of hydrolysis will give us fatty acids and glycerol. Okay, it will give us fatty acid and glycerol. Now let's talk about peroxisome, which are similar to lysosomes, but two differences that are there is self-replicatory. मतलब it has its own DNA machinery. खुद का DNA मशीनरी है, मतलब वो खुद से रेप्लिकेट कर लेगा. एंड सेकेंड, इट हैज़ ऑक्सीडेसिस. ऑक्सीडेसिस है, हाइड्रोलिसिस नहीं है, राइट? ऑक्सीडेसिस कैसे काम करता है वो आप ध्यान देना, ठीक है? सपोज वी हैव अ सेल, उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो है ही. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों चाहिए हमें? ठीक है, बिकॉज this hydrogen peroxide will combine with catalase. Okay, it will combine with catalase to prevent poisoning. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेले काम नहीं कर सकता. ओके, इट नीड्स कैटलेस एंजाइम बिकॉज इट विल प्रिवेंट पॉइजनिंग. कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. से यू आर अ क्रॉनिक अल्कोहलिक. ओके, और यू आर एन अल्कोहलिक. सो व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड and catalase combine together, they will act on alcohol to form acetaldehyde, which is a less poisonous form of alcohol. ठीक है, अगर अल्कोहल डायरेक्टली गया इट विल बी वेरी पॉइजनस, इट विल कॉज लिवर सिरोसिस, राइट? तो वो प्रिवेंट करने के लिए इट विल फॉर्म acetaldehyde, राइट? सो हियर इज H2O2 प्लस कैटलेस कंपाउंड. ठीक है, और ये H2O2 कहाँ से बन गया? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीडेसिस, राइट? सो रिमेंबर दिस. And very important function is catabolism, or we will say breakdown of long chain fatty acids. Okay, there are various types of fatty acid, primarily long chain fatty acids. Easy, right?
सो दो फंक्शंस है इसके. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट इन द टेबल फॉर यू. ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ ओन आउट ऑर्गेनल्स हो गया, एंड यहाँ पर पेरोक्सिसोम है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक products. There are more functions, but these are the two very important functions. Okay, now we'll talk about secretory vesicles. Okay, उनका काम ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरेज ऑफ प्रोएंजाइम्स. ना प्रोएंजाइम्स क्या होते हैं? जीआईटी में वी हैव प्रोएंजाइम. जब खाना नहीं है तो भी ये एंजाइम रिलीज होते रहते हैं, बट दे डोंट वर्क. ओके, सो दे आर फॉर्म्ड इन द इनएक्टिव फॉर्म. सो प्रोएंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, राइट. एग्जाम्पल ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, राइट, chymotrypsinogen. So these are proenzymes. Okay, जब खाना आएगा so they'll start working, they'll get activated by a mechanism that we'll learn in GIT physiology, but for now just understand जो proenzyme है वो inactive enzymes होते हैं. Examples trypsinogen and chymotrypsinogen. Okay, now we'll talk about mitochondria. Powerhouse of the cell, no doubt. Again, two membranes. First membrane, this is outer, and the inner one is thrown into folds called cristae. ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम्स होते हैं फॉर सेल रेस्पिरेशंस, वैसे यहाँ पर क्रिस्टा होते हैं हैविंग ऑक्सीडेसिस. ओके, मैंने ऑक्सीडेसिस का फंक्शन पहले भी बताया था. दे ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स. ओके, उनका काम है न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज करना टू गिव CO2, H2O and ATP, and अपना अल्टीमेट गोल है is to get ATP for the functioning of our body, right? So mitochondria will break down all the nutrients, will break down everything you eat to give ATP, right? It will release energy. Again, like peroxisome, it has its own DNA, therefore self-replicatory. Okay, now two other organelles left. Nucleus. I will just mention the constituents, cell constituents: nuclear membrane, nucleoplasm, nucleopore and nucleolus, right? So I'll draw it for you. See, this is the nucleus. Okay, double membrane bound structure. So ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड यहाँ जो है, जो बिकॉज इट इज़ डिसकंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं है, सो न्यूक्लियर पोर बन जाता है. एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा है, जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, एंड ये है न्यूक्लियोलस. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट देयर आर, ये हो गया वन काइंड ऑफ क्रोमेटिन एंड ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमेटिन, राइट. न्यूक्लियस के अंदर देयर इज ऑलवेज हेरिडिटरी मटेरियल, राइट. सो हेरिडिटरी मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. सो जो क्रोमोसोम्स है, दे आर बेस्ड ऑन टू थिंग्स, राइट. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हियर. वन इज डार्क स्टेन्ड हेटेरोक्रोमेटिन. डार्क स्टेन्ड है, वो इजीली दिख जाएगा माइक्रोस्कोप में. एंड एक जो है वो लाइट स्टेन्ड है, वो है यूक्रोमेटिन. ठीक है, यूक्रोमेटिन. सो dark stained is heterochromatin and euchromatin is light stained. Let's talk about ribosomes. Free ribosomes and attached to RERs. RERs क्या होते हैं? Rough endoplasmic reticulum, which makes it granular, right? So free जब chain हो जाता है, you know, राइबोसोम 1, राइबोसोम 2, राइबोसोम 3, 4, 5 ऐसे चेन बना लेते हैं, तो हम उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स. ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स. राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन हाउस है, आर के साथ फंक्शन करते हैं. सो जो आर राइबोसोम्स है वो बनाएंगे हार्मोनल प्रोटीन्स. दे सिंथेसाइज हार्मोनल प्रोटीन्स, दे सिंथेसाइज एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. एंड जो फ्री राइबोसोम्स है उनका काम है हीमोग्लोबिन बेस्ड प्रोटीन्स बनाना, पेरोक्सिसोम बेस्ड प्रोटीन्स बनाना और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स बनाना. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. जो राइबोसोम्स है उनका काम है सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिफरेंटली बेस्ड है. That is all. Quickly I will tell you some more functions if they are present. I will mark it for you. What we can do is over here, let's quickly write about centrosome also. ठीक है, centrosome, it has centrioles, forms spindles. उनका function क्या है? Help in cell division. Okay, they help in cell division. So centrosomes have centrioles, they form spindles and help in cell division. ठीक है, एंड हमारा जो साइटोस्केलेटन है, ठीक है, अगेन साइटोस्केलेटन हैज़ नथिंग बट उसका फंक्शन है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल.
how it will provide stability? By forming framework of the cell. ठीक है, ठीक है, it provides the framework of the cell, and it is made up of different proteins. Example will be tubulin, flagellin, depending upon what kind of structure is it. So it can be microfilaments, ठीक है, or it can be tubulins. Okay, so I think that is all, and we have covered more or less every organelle. But if you still have any doubts, just drop it in the comment section below, and do follow us on our Instagram page and Telegram channel, and post in your suggestions, your feedbacks down in the comment below, or get back to us directly. Thank you for watching.